ਕਿ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। जब आप पूरा दिन दिमाग में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं ना, नेगेटिव कहानियां बनाते रहते हैं, उसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। मतलब एक ही बात को बार बार सोचना, बिल्कुल ऐसे जैसे गाना लूप पे अटक गया हो और बंद ही ना हो रहा हो। ओवरथिंकिंग अक्सर तब शुरू होती है जब या तो हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर हम फ्यूचर से डर रहे होते हैं। अक्सर ओवरथिंकिंग पास्ट के हर्ट या रिजेक्शन से शुरू होती है। ऐसी कोई भी बात जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ, जब तक वो आपके दिल और दिमाग में बैठी रहती है, तब तक आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे ही रहते हैं। वक्त आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब भी दिमाग अगर फिर ऐसा हो गया तो ऐसे डर को पकड़ के बैठा रहता है। ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा रीजन होता है कंट्रोल खो देने का डर। हम सब चाहते हैं लाइफ हर स्टेप पे हमारे हिसाब से चले, पर जब ऐसा नहीं होता तो माइंड पैनिक मोड में चला जाता है। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, 95% चीजें जो आप ओवरथिंकिंग के दौरान सोच रहे होते हो वो कभी होती ही नहीं। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਛਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਵਿਰਮਾਨੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਮਿਰੇਕਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਲਜੀਤ ਪਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਵਿਰਮਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਅਦਨਾਨੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ, ਕਿ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। जी। जब आप पूरा दिन दिमाग में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं ना, नेगेटिव कहानियां बनाते रहते हैं, उसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। मतलब एक ही बात को बार बार सोचना, बिल्कुल ऐसे जैसे गाना लूप पे अटक गया हो और बंद ही ना हो रहा हो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, 95% चीजें जो आप ओवरथिंकिंग के दौरान सोच रहे होते हो वो कभी होती ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपका मैसेज नहीं देखा और रिप्लाई नहीं किया। रियलिटी कुछ भी हो सकती है, वो बिजी हो सकते हैं, क्या पता उन्हें नींद आ गई हो, क्या पता उनके यहाँ कोई आ गया हो, या क्या पता उनकी फोन की बैटरी डेड हो गई हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। पर आपका माइंड सोचता है वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे, मेरे मैसेज की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। और बस एक छोटी सी बात चिंता का घर बन जाती है। 100 बार दिमाग में अलग अलग नेगेटिव तरीकों से रिपीट होती जाती है। बस यही है ओवरथिंकिंग। प्रॉब्लम रियलिटी में इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे सोच सोच के बना देते हैं।
ਸੋ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰग ਕਰਦਾ ਹੈ। ओवरथिंकिंग अक्सर तब शुरू होती है जब या तो हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर हम फ्यूचर से डर रहे होते हैं। हम्म देखिए, ओवरथिंकिंग एक साइलेंट बैटल है जो हम्म आदमी अपने दिमाग के अंदर अकेला लड़ रहा होता है। हम्म अक्सर लोग कहते हैं, अरे इतना मत सोच, लेकिन जो हम्म बंदा उस लूप में फंसा होता है उसके लिए हम्म इतना मत सोच इस लाइन हम्म की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हम्म सोच उसके कंट्रोल में ही नहीं है। हम्म लोग सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग कुछ कॉमन ट्रिगर्स के कारण करते हैं। जैसे हम्म अगर बात करें तो रिलेशनशिप, हम्म यहां एक सिंपल चीज जैसे किसी का थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना तुरंत हम्म दिमाग में हजार कहानियां स्टार्ट कर देता है। लोग सोचने हम्म लगते हैं कुछ तो बदल गया, शायद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। दूसरा, फ्यूचर को लेकर हम्म ओवरथिंकिंग बहुत कॉमन है। हम्म अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो, ऐसे सवाल दिमाग दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज बना देते हैं। हम्म तीसरा, करियर, जहां परफेक्ट हम्म होने का प्रेशर एक्शन से पहले ही थका देता है। हम्म ट्रिगर चाहे कोई भी हो, पैटर्न एक ही होता है कि हम्म छोटी सी बात दिमाग में बढ़ती बढ़ती एक बड़ी कहानी बन जाती है और इंसान उस सोच के लूप में फंस जाता है। हम्म हम्म जी। ਹੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਾक़ਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ? हाँ जी। हुँ, ओवरथिंकिंग के पीछे हमेशा कोई ना कोई इमोशनल या मेंटल ट्रिगर होता है। अच्छा। ये, हाँ जी, ये ऐसे ही अचानक या बिना हुँ, वजह नहीं आती। हुँ, अक्सर ओवरथिंकिंग पास्ट के हर्ट या रिजेक्शन से शुरू होती है। हुँ, ऐसी कोई भी बात जिससे हुँ, आपको बहुत हर्ट हुआ, जब तक हुँ, वो आपके दिल और दिमाग में बैठी रहती है, तब तक हुँ, आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे ही हुँ, रहते हैं। हुँ, वक्त आगे बढ़ जाता है, हुँ, लेकिन तब भी दिमाग अगर फिर ऐसा हो गया तो, हुँ, ऐसे डर को पकड़ के बैठा रहता है। ओवरथिंकिंग का हुँ। एक और बड़ा रीजन होता है कंट्रोल खो देने का डर। हम सब अच्छा। चाहते हैं लाइफ हर स्टेप पे हमारे हिसाब से चले, हुँ, पर हुँ, जब ऐसा नहीं होता तो माइंड हुँ, पैनिक मोड में चला जाता है। हुँ, फिर आता है लोग क्या कहेंगे वाली ओवरथिंकिंग। बस हुँ, इसी पॉइंट पे हम अपनी खुशी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं और वो हुँ, क्या सोचेंगे इस हुँ। थॉट में खुद को उलझा लेते हैं। ओह हो हो! फिर आता है अनसर्टेनिटी का डर। हुँ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है ओवरथिंकिंग का, क्योंकि हुँ, फ्यूचर फिक्स होता है क्या? नहीं होता। हुँ, और हुँ, ह्यूमन माइंड चाहता है सर्टेनिटी और सिक्योरिटी। हुँ, जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो दिमाग हुँ, अपनी कहानी खुद लिखने लग जाता है और हुँ, वहीं से ओवरथिंकिंग का लूप स्टार्ट हो जाता है। और हुँ, सबसे हुँ, साइलेंट और हुँ। पावरफुल ओवरथिंकिंग का रीजन है लो सेल्फ ट्रस्ट। अच्छा। जब इंसान को अपनी ही डिसीजंस पे पूरा भरोसा नहीं होता, तो ओके। ऐसे में छोटी सी सिचुएशन भी दिमाग में हुँ, तूफान ला सकती है। हुँ, जैसे कल अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, हुँ, रियलिटी में बस थोड़ा सा खाना बनाना है और थोड़ी सी सफाई करनी है, हुँ, लेकिन माइंड का लूप तुरंत स्टार्ट हो जाता है। खाना पसंद आएगा या नहीं, सब कुछ हुँ, परफेक्ट ना हुआ तो क्या सोचेंगे गेस्ट, घर साफ हुँ, सुथरा लग रहा है या नहीं, सब हैंडल हुँ, हो पाएगा या नहीं। और हुँ, अभी तक तो गेस्ट आए भी नहीं, लेकिन दिमाग में पूरा जजमेंट का सीन रेडी हो गया। हुँ। मतलब ओवर थिंकिंग असल सिचुएशन होने से पहले ही आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती है। ओहो! जैसे दिमाग में एक स्ट्रेसफुल ड्रामा चल रहा हो, जबकि रियलिटी हुँ, इतनी स्केरी नहीं होती। हुँ। जी। ਜੀ, 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 ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है ओवर थिंकिंग का। हम्म जब दिमाग एक ही बात में अटक जाता है ना, तो हम्म सिर्फ सोच ही नहीं, उस हम्म सोच से लाइफ का हर एरिया इंपैक्ट होता है। हम्म जैसे नींद डिस्टर्ब होती है, रात को हम्म दिमाग बंद ही नहीं होता। हम्म मूड स्विंग्स होते हैं, छोटी छोटी हम्म बातें इरिटेट करने लगती हैं, कभी अचानक उदासी आ जाती है, कभी अचानक गुस्सा आने लग जाता है। हम्म फोकस चला जाता है, हम्म काम पे ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग में बिजी है। हम्म प्रोडक्टिविटी गिरती है, हम्म एनर्जी एक्शन में लगानी चाहिए, लेकिन वो हम्म इतना ज्यादा सोचने में ड्रेन हो जाती है कि आप कुछ करने लायक ही नहीं बचते। ओहो। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, हम्म क्योंकि हम अज्यूम ज्यादा करते हैं और समझते हम्म कम है। हम्म हम्म कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, हम्म इंसान खुद पे शक करने लगता है, और हम्म सेल्फ ट्रस्ट टोटली हिल जाता है। अब हम्म सोचिए, आपको किसी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, या हम्म आप किसी नए काम के लिए ट्राई कर रहे हो, हम्म दिमाग तुरंत आपको बोलता है मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं उतना हम्म केपेबल हूं भी या नहीं। लेकिन बिल्कुल। रियलिटी में आप परफेक्टली केपेबल भी होते हो, पर आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते। तो इस तरह बिल्कुल। की जो सिचुएशंस आती हैं, वो लाइफ को ठीक ठाक इम्पैक्ट करना शुरू कर देती हैं। जी। ਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੀ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल निकला जा सकता है। हम्म ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, हम्म ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिंदगी भर हम्म आपको कंट्रोल करे। ये हम्म बस एक आदत है, एक आदत जो हम्म धीरे धीरे आपके माइंड ने डेवलप कर ली है। और अच्छा। सबसे अच्छी बात, आदतें हम्म परमानेंट नहीं होती, उन्हें बदला जा हम्म सकता है। जी। थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, पर हाँ हम्म पॉसिबल है। हम्म जैसे आप किसी पुरानी आदत को छोड़ के नए रूटीन में शिफ्ट कर सकते हो ना, वैसे ही ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ना भी आप सीख सकते हो। अच्छा। शुरू में, जी, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दिमाग ऑटोमेटिकली पुराने पैटर्न में जाता है। लेकिन हम्म जैसे ही आप उस लूप को पहचानना हम्म और रोकना शुरू कर देते हो, हम्म कंट्रोल आपके हाथ में वापस आने लगता है। हम्म अगर हम्म आप ओवरथिंकिंग को प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक हम्म हैबिट की तरह, एक आदत की तरह देखना शुरू कर दें, हम्म तो तुरंत एक शिफ्ट फील होता है, क्योंकि हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। हम्म अभी आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम्म अब आपको उसे कंट्रोल करना सीखना है। बस हम्म थोड़ा सा डायरेक्शन देना है, और ओवर हम्म थिंकिंग धीरे धीरे खुद ही कम होने लगती है। क्या बात है। जी। ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल। मैं हम्म, आपको 3 प्रैक्टिकल टूल्स बताती हूँ, बहुत अच्छा जी। पावरफुल है। जी। हम्म जिनकी मदद से आप ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ सकते हैं। हम्म ओवर थिंकिंग के लिए बहुत इफेक्टिव टूल है सच वर्सेस कहानी, अच्छा जी। यानी फियर हम्म वर्सेस फैक्ट। जब भी हम्म आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो ना, हम्म उस टाइम आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। हम्म और प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस कहानी को सच मान लेते हैं। हम्म इसलिए आपको बस इतना करना है कि हम्म आपने अपने आप से पूछना है कि हम्म ये जो मैं सोच रहा हूं, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी हम्म सोच है। हम्म जैसे अगर आपको किसी ने रिप्लाई नहीं किया, हम्म तो तुरंत दिमाग बोलता है कि वो इग्नोर कर रहा है या इंटरेस्टेड नहीं हम्म है। हम्म लेकिन सच सिर्फ इतना है कि रिप्लाई नहीं आया, बाकी सब हम्म आपके अपने दिमाग की इंटरप्रिटेशन है।
आपको एक्चुअली में तो नहीं पता ना कि रिप्लाई क्यों नहीं आया। हम्म जब आप ये डिफरेंस समझना शुरू कर देते हो तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। हम्म दूसरा टूल है, बहुत अच्छा टूल है ओवर थिंकिंग के लिए, कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। अच्छा। जी, जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हम्म अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछना है, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? हम्म अगर जवाब हां है तो उस पर एक्शन लीजिए, और अगर जवाब ना है तो उसे एक्सेप्ट करके छोड़ना सीखिए। हम्म जैसे कल बारिश बहुत। होगी या नहीं, जी, हम्म ये आपके कंट्रोल में है या नहीं? नहीं। नहीं, तो उसके बारे में बार बार सोचने का कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ आपकी हम्म एनर्जी वेस्ट हो रही है। हम्म जी। तीसरा मोस्ट पावरफुल टूल फॉर ओवर थिंकिंग, अच्छा। चैनल स्विच। अच्छा जी। जी, आपका दिमाग बिल्कुल टीवी की तरह काम करता है, हम्म और हर थॉट एक चैनल हम्म की तरह होता है। हम्म अगर आप बार बार एक ही नेगेटिव थॉट पर फोकस करते रहोगे तो वो हम्म और स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म इसलिए जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गए हो, हम्म तो कॉन्शियसली अपना फोकस शिफ्ट करना है। हम्म एक छोटा बच्चा जब जिद कर रहा होता है ना, बहुत रो रहा होता है, तो हम क्या हम्म करते हैं? हम्म उसका सीन चेंज कर देते हैं, उसे बाहर ले जाते हम्म हैं, या उसका ध्यान ਉਹਦਾ किसी और ਧਿਆਨ चीज ਕਿਸੇ पर, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। और पास से ला देते हैं। हाँ जी, हम्म और वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। हम्म बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपने दिमाग का सीन चेंज करना है। जैसे ठीक अगर है। आप किसी बात को लेकर बार बार सोच रहे हो, हम्म तो उठकर थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, अच्छा। म्यूजिक सुन लीजिए, हम्म डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। हम्म देखिए, थॉट्स का आना तो नॉर्मल है, हम्म लेकिन उस थॉट पर रुकना या नहीं रुकना, ये आपके हम्म कंट्रोल में होता है। हम्म सच ये है कि हम अक्सर उन चीजों पर ओवर थिंकिंग करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। जी। ओवर थिंकिंग को आप रोक सकते हैं, हम्म लेकिन उसके बारे में समझ के आप हम्म उसकी पावर कम कर सकते हैं। ठीक है। जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ चेंज ਘਰ कर दो। ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸੈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 뮤직 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਾਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। जी, ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ बिल्कुल ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਲਾਈਫ टाइम ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ हर बार चैनल चेंज करना पड़ेगा? नहीं। हम्म जो हमारे थॉट्स आते हैं, हम्म हमारी उन पर कोई रोक नहीं है। थॉट्स हम्म आएंगे, लेकिन अच्छा। आपको थॉट से निकलने का रास्ता हम्म पता चल जाने के बाद आपके लिए निकलना आसान हो जाएगा। जैसे ओके। सपोज करिए आप एक ब्रिज पर खड़े हैं, हम्म किसी ने आपको धक्का मार दिया और आप पानी में गिर गए। हम्म पहली बार आप गिरे, आपको नहीं पता कि ऊपर कैसे निकलना है। आपने हम्म हाथ पैर मारना शुरू किया, ट्राई किया, हम्म और धीरे धीरे आप सरफेस की तरफ आ गए। हम्म अब आप सेम सिचुएशन में दोबारा आए, हम्म तो आपको पता है अब क्या करना है। हम्म सिचुएशन अवॉइड नहीं कर सकते आप, किसी ने हम्म धक्का मार ही देता, अवॉइड नहीं बिल्कुल। कर सकते। पर अब हमें पता चल गया है कि उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और सिचुएशंस लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन हम्म आप उससे डील कैसे करना है ये आप आसानी से समझ जाएंगे। जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ Facebook, Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਵਰ
ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। पहला तो दलजीत पाजी, थैंक यू सो मच। आपने हम्म इतने बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जो हम्म आजकल ओवर थिंकिंग को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में है। हम्म। अब मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी का नाम लाइफ मिरेकल्स है, जिसे मैं हम्म और मेरी पार्टनर कोच सीमा अदनानी, हम दोनों सर्टिफाइड लाइफ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस मिलकर चलाते हैं। आप हम्म हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर @लाइफ मिरेकल्स ऑफिशियल हैंडल के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, या डायरेक्टली डीएम करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैनिफेस्ट विद श्वेता विरमानी पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है। जी, और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट हम्म, बात, लाइफ हाँ जी। मिरेकल्स हाँ जी, लाइफ मिरेकल्स की तरफ से हर वीक एक फ्री जूम मास्टर क्लास होती है जिसका हम्म, नाम है मैनिफेस्ट इजीली। इसका लिंक दलजीत सर आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जरूर। ताकि वो जरूर ज्वाइन करके अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जी। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ तो ਬਿਲकुल ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਆਖਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। जी, तो चलिए आपके दर्शकों से और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइफ मिरेकल्स की तरफ से बस एक ही मैसेज, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी लाइफ के मिरेकल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, जी, क्या बात है। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू सर।